Hello guys, welcome to this Indian polity session. Today we will do MCQs on the Lokpal and Lokayukta. So watch the complete session guys, and if any person is visiting this channel for the first time, so you can subscribe the channel and don't forget to press the bell icon also. So let us start our session with the first question. Which of the following commissions or committees has recommended the creation of a local body ombudsman? A option is First Administrative Reforms Commission, B option is Second Administrative Reform Commission, and C option is Balwant Rai Mehta Committee, and D option is Ashok Mehta Committee. So the right answer is option A, that is First Administrative Reforms Commission recommended the creation of a ombudsman. Next question is, which is the oldest known system designed for the redressal of a citizen grievance? A option is Ombudsman system, B is Lokpal, C option is Lokayukta, and D option is none of the above. So the right answer is option A, that is Ombudsman system. Next question is, which was the first Commonwealth country in the world to adopt the Ombudsman system? A option is India, B is Sweden, C option is New Zealand, and D option is United Kingdom. So the right answer is option C, that is New Zealand. Okay. So अगर हम बात करें कंट्री की, सो आंसर आएगा स्वीडन, बट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फर्स्ट कॉमनवेल्थ कंट्री, देन द आंसर विल बी न्यूजीलैंड. ओके, द फर्स्ट टाइम इट इज अडॉप्टेड बाय स्वीडन इन द ईयर 1809, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोक्यूरेटर सिस्टम is still running in which of the following countries? A option is India, B is Sweden, C option is New Zealand, and D option is Russia. So the right answer is option D, that is Russia. The procurator system is or was popular in socialist country and it is still running in Russia today. The tenure of the office of the procurator general in Russia is 7 years. आप याद रख सकते हो इस चीज को. Next question is, the first Lokpal bill was presented in parliament in which year? A option is 1967, B is 1971, C option is 1968, and D option is 1972. तो जो फर्स्ट टाइम जो लोकपाल इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था 1968 ईयर में, राइट. Here I mentioned some important information. आप देख सकते हो that in the early 1960 the law minister, उनका नाम था अशोक कुमार सेन, suggested the idea of a constitutional ombudsman in the parliament. Right. Next point is advocate Shanti Bhushan introduced the first Lokpal bill in the 1968. 1968 में जो जन लोकपाल बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था शांति भूषण के द्वारा. उस टाइम जो है उसको पास किया गया था लोकसभा के द्वारा, जो कि उस टाइम की 4th लोकसभा थी इन द ईयर 1969. बट जो है उस टाइम जो है उस लोकपाल बिल को जो है राज्यसभा के द्वारा पास नहीं किया गया था, राइट. सो आगे मूव नहीं हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म लोकपाल वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय. A option is K. Radhakrishnan, B is Morarji Desai, C option is Anna Hazare, and D option is L.M. Singhvi. तो जो लोकपाल का वर्ड था या टर्म था, इसको कॉइन करने वाले पर्सन थे L.M. सिंघवी, और इन्होंने इस टर्म को दिया था 1963 ईयर में, और इनको जो है फादर ऑफ लोकपाल भी कहा जाता है. सो आपको अच्छे से याद रखना है L.M. सिंघवी, राइट. Here I mentioned that a Lokpal is an anti-corruption body or authority of the public interest in the Republic of India. लोकपाल क्या होता है? It is an anti-corruption body और authority. और अगर हम सेम जो है स्टेट लेवल पर बात करें, सो जो एंटी करप्शन अथॉरिटी होती है उसको लोकायुक्ता कहा जाता है, और सेंट्रल लेवल पर जो है लोकपाल कहा जाता है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो वाज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया. फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया था 2019 में. सो आपको उनका नाम बताना है. ए ऑप्शन इज अभिलाषा कुमारी, बी ऑप्शन इज इंद्रजीत प्रसाद गौतम, सी ऑप्शन इज दिलीप बी भोसले, एंड डी ऑप्शन इज पिनाकी चंद्रा घोष. जो फर्स्ट लोकपाल थे इंडिया के, उनका नाम था पिनाकी चंद्रा घोष, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता इन इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय. नाउ ट्राई टू गिव द राइट आंसर. हम इसको प्रीवियस कर चुके. ए ऑप्शन इज सरकारिया कमीशन, बी इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, सी ऑप्शन इज लॉ कमीशन, एंड डी ऑप्शन इज ठक्कर कमीशन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन मॉडल ऑफ ombudsman इज. ए ऑप्शन इज लेखपाल, बी इज तहसीलदार, सी ऑप्शन इज गवर्नर, एंड डी ऑप्शन इज लोकपाल. तो जो इंडिया का मॉडल है ombudsman का, उसको कहा जाता है लोकपाल. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द ऑफिस ऑफ लोकायुक्ता वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड. ए ऑप्शन इज महाराष्ट्र, बी इज उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन इज बिहार, एंड डी ऑप्शन इज ओडिशा.
जो लोकायुक्ता था उस कौन सी स्टेट थी उसको फर्स्ट टाइम जो है एस्टेब्लिश करने वाली, सो वो थी महाराष्ट्र स्टेट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Here I mentioned that Maharashtra established the system of Lokayukta in the year 1971 through the act of Lokayukta and Up Lokayukta। और जो institution of Lokayukta and Up Lokayukta था ये आया था coming to existence on October 25th 1972, right? Next question is the first Indian state to pass the Lokayukta bill in 2011 is A option is Uttar Pradesh, B is Bihar, C option is Uttarakhand, and D option is Jharkhand. So right answer is option C, that is Uttarakhand. Next question is when did the Lokpal and Lokayuktas Act 2013 came into force? A option is January 2013, B is May 2013, C option is December 2013, and D option is January 2014. तो जो लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 था, इट केम इनटू फोर्स ऑन द जनवरी 2014, राइट? हियर आई मेंशन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था लोकसभा में, इसको राज्यसभा के द्वारा पास कब किया गया, इसको जो है प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली, और फाइनली ये फोर्स में कब आया। सो आया था 16 जनवरी 2014, राइट? आप ये पॉइंट्स देख लीजिए अगर आपको थोड़ा डिटेल में जाना है। Next question is according to Lokpal and Lokayukta Act 2013, the Lokpal shall consist of maximum how many members including the chairperson? आपको बताना है that the institution of Lokpal has how many members including the chairperson? So A option is 3, B is 4, C option is 9, and D option is 5. So the right answer is option C, that is 9. एक चेयरमैन रहता है और अदर जो है 8 और मेंबर्स रहते हैं। मींस मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 9 मेंबर हो सकते हैं चेयरपर्सन को इंक्लूड करके, राइट? ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम लोकायुक्ता की बात करें तो वहां पर भी टोटल कितने मेंबर आएंगे? 8 मेंबर आएंगे, सॉरी 9 मेंबर आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ द लोकपाल? लोकपाल का टेन्योर कितना रहता है? ए ऑप्शन इज 5 ईयर्स, बी इज 3 ईयर्स, सी ऑप्शन इज 7 ईयर्स, एंड डी ऑप्शन इज 9 ईयर्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 5 ईयर्स। तो अगर जो है इनके टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें, सो चेयरमैन और मेंबर्स दोनों की जो है टेन्योर रहेगा 5 ईयर्स, और अगर एज की बात करें सो मैक्सिमम एज रहेगी 70 ईयर्स, जो भी पहले हो जाएगा। अगर कोई पर्सन जो है 70 ईयर्स की एज को पहले रीच कर रहा है तब भी उसका जो है टेन्योर खत्म माना जाएगा, और अगर उसका 5 साल का पीरियड हो गया उसको वहां पर काम करते हुए तो भी जो है इसका टेन्योर जो है कंप्लीट माना जाएगा, राइट? तो ये रहेगा। और अगर हम लोकायुक्ता की बात करें, मीन्स अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो वहां पर जो है 5 ईयर्स तो सेम रहेगा टेन्योर, बट एज जो रहेगी वो 70 ईयर्स की जगह है जो है 65 ईयर्स आ जाएगी, राइट? इस पॉइंट को जो है याद रखिएगा, यहाँ पर इंक्लूड करना मैं भूल गई हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द लोकायुक्ता एंड उप लोकायुक्ता? So your A option is governor of the state, B is chief minister, C option is speaker of Lok Sabha, and D option is judges of high courts. तो जो गवर्नर जो लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्ता होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा, राइट? सो योर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और अगर हम लोकपाल की बात करें, एट द सेंट्रल लेवल की बात करें, तो उनको लोकपाल को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, राइट? इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। Next question is which state's Lokayukta office is considered to be the most strongest on terms of power and scope? A option is Bihar, B is Karnataka, C option is Andhra Pradesh, and D option is Maharashtra. So right answer is option B, that is Karnataka. Next question is consider the following statements. यहाँ पर 3 statements दी हुई हैं और आपको बताना है कि कौन सी statements जो हैं right one है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द जुडिशरी इज विद इन द प्रीव्यू ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट इज इन न्यूजीलैंड द जुडिशरी इज नॉट विद इन द प्रीव्यू ऑफ पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन। थर्ड पॉइंट इज इन स्वीडन द जुडिशरी इज नॉट विद इन द प्रीव्यू ऑफ द ऑम्बड्समैन सिस्टम। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज ओनली 2. So it means that the judiciary is not within the purview of Lokpal and Lokayukta in India and New Zealand, but in Sweden that the judiciary is within the purview of the ombudsman system. Okay, here I mentioned some important information. कुछ points जो हैं हम cover up कर चुके हैं MCQs की फॉर्म में। अगर कुछ रिमेनिंग रहा हो तो वो यहाँ पर हो जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करके जो है खुद भी इसको रीड आउट कर लीजिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट देख लीजिए, दैट पूछा जा सकता है दैट लोकपाल एंड लोकायुक्ता इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल और अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी रहती है, राइट? और इसका फंक्शन क्या रहता है? टू इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन। ओके,
यहाँ पर आइए, ये तो हमने कर लिया दैट स्वीडन इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट इन द ईयर 1809। बट अगर कॉमनवेल्थ कंट्री की बात करें तो न्यूजीलैंड जो है वो फर्स्ट कंट्री थी इस सिस्टम को अडॉप्ट करने वाली, राइट। फर्दर आइए दैट द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसको फर्स्ट टाइम जो प्रपोज किया गया था वो दिया गया था लॉ मिनिस्टर अशोक कुमार सिंह के द्वारा इन द पार्लियामेंट में। ओके, और जो फर्स्ट पर्सन थे इस टर्म को देने वाले दैट लोकपाल एंड लोकायुक्ता को, वो थे डॉक्टर एल.एम. शिंगवे, जिनको की जो है फादर ऑफ लोकायुक्ता लोकपाल भी कहा जाता है, राइट। और जो कमीशन था इसको रिकमेंड करने वाला वो था फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। आप ईयर भी याद रख सकते हो 1966। और यहाँ पर मैंने कुछ और पॉइंट्स भी मेंशन किए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके जो है इनको भी देख सकते हो, राइट। यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वैसे हम सारे जो हैं वहाँ पर कवर अप कर चुके हैं। जो एक पॉइंट मिसिंग है वो ये है, हाँ, दिस पॉइंट इज थर्ड वन पॉइंट पे आइए दैट द एज ऑफ लोकपाल, जो लोकपाल एंड लोकायुक्ता दोनों की जो मिनिमम एज रहती है टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन और द मेंबर्स ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता, वो कितनी रहती है, वो होनी चाहिए आपकी 45 ईयर्स, नॉट लेस देन 45 ईयर्स, राइट। सो दिस पॉइंट इज मिसिंग इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, सो इसको आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लोकपाल को, ये हमने कर लिया। और प्रेसिडेंट को जो है उसको जो है रिकमेंड कौन करता है उस पर्सन को अपॉइंट करने के लिए, तो उसमें जो एक सिलेक्शन कमेटी रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन आते हैं, पीएम रहता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। आपको थोड़ा डिटेल में जानना है, आप प्लीज यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिए। सो विद दिस गाइस आई एंड अप टुडे सेशन। आई होप दैट you love the content, so please give a one thumbs up to video. We will meet soon in the next session guys. Till then, bye bye and take care.